नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का हम करताल ध्वनि से अपने स्थान पे खड़े होकर स्वागत करेंगे। બધા જ ખેડૂત મિત્રોને વિનંતી, આપણે સૌ માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી જ્યાં સુધી સ્ટેજ ઉપર આવે ત્યાં સુધી આપણે તાળીઓના કરતાલ ધ્વનિથી એમને વધાવશું। હું વિનંતી કરીશ સ્ટેજ પર માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, એ સાથે આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા સાહેબ, શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ સેંજલિયા ખેડૂત આગેવાન શ્રી, ડૉક્ટર AR પાઠક સાહેબ કુલપતિ શ્રી જુનાગઢ યુનિવર્સિટી, અને માનવંતા શ્રી વલ્લભભાઈ કથિરિયા અને માનવંતા શ્રી મોહનભાઈ કુંડારિયા, આટલા મહેમાનશ્રીઓને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર એમનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે। આજના આ ખેડૂત સંવાદ શિબિરના બીજા સેશનમાં આપણી વચ્ચે આપણા આમંત્રણને માન આપી અને આપણા ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય શ્રી દેવવ્રતજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। આપણે વિનંતી કરશું કે એ સાથે માનવંતા મહેમાનશ્રીઓ પણ સ્ટેજ ઉપર પધારશે। फिर से एक बार करताल ध्वनि से आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष गुजरात राज्य के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों थी आपणे बे हाथ जोड़ी अने आजना कार्यक्रमना मुख्य मेहमान श्री ने आवकारीए, एमनु भाव अने प्रेम थी स्वागत करिए। हूँ विनंती करीश आजना कार्यक्रम में स्टेज पर पद्मश्री मथुरभाई सवाणी, माननीय श्री पुरुषोत्तमभाई रूपाला साहेब, ખેડૂત આગેવાન શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ સેંજલિયા, આ તમામે તમામ માનવંતા મહેમાનશ્રીઓને વિનંતી સ્ટેજ ઉપર એમનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે। નમસ્કાર। સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતોના જાત અનુભવના આ સંવાદ શિબિરમાં બીજા સેશનમાં આપ સૌ માનવંતા મહેમાનોનું ભાવ અને પ્રેમથી હાર્દિક સ્વાગત છે। પ્રથમ સેશનમાં ખેડૂતોએ પોતાના જાત અનુભવો દ્વારા પ્રાકૃતિક ખેતી કઈ રીતે કરીએ અને ખેતીમાં કઈ રીતે વધારે સારું ઉત્પાદન કરી અને લોકોને તંદુરસ્ત ખોરાક પ્રાપ્ત થાય એવા સરસ મજાના કાર્યક્રમમાં બીજા સેશનમાં માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી, માનનીય પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા સાહેબ શ્રી, આ બંને મહેમાનોને ફરી એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ, આપણે આજના કાર્યક્રમમાં એમનું સ્વાગત કરીએ। અને હું વિનંતી કરીશ આજના કાર્યક્રમમાં માનનીય રાજ્યપાલશ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણીને વિનંતી કરીશ કે શાલ અને પુષ્પગુચ્છ આપી અને આપણા સૌના વતી માનનીય રાજ્યપાલશ્રીને આવકારશે, એમનું ભાવ અને પ્રેમથી સ્વાગત કરશે। આપણે પણ જોરદાર તાળીઓથી એમને આવકારીએ, એમનું સ્વાગત કરીશું। અને એવા જ આપણા સૌના લોકલાડીલા માનનીય મંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, ત્યારે હું ઉપેન્દ્રભાઈ નાથાણીને વિનંતી કરીશ, માનનીય શ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ નાથાણી પધારશે અને રૂપાલા સાહેબને આવકારશે, શાલ અને પુષ્પગુચ્છ દ્વારા આવકારશે। જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવશું, એમનું સ્વાગત કરતા આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ। ગામડે ગામડે ફરી અને ખેડૂત ઋષિની જેમ ખેડૂતોને સમજાવે અને ભાવ અને પ્રેમથી લોકોને જોડે એવા ખેડૂત આગેવાન શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ સેંજલિયાને આવકારવા માટે હું રાજેશભાઈ નાથાણીને વિનંતી કરીશ। માનવંતા શ્રી રાજેશભાઈ પધારશે અને ખેડૂત આગેવાન માનનીય શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ સેંજલિયાને શાલ અને પુષ્પગુચ્છથી આવકારશે। આપણે સૌ પણ જોરદાર તાળીઓથી આવકારશું। માનવંતા તમામ મહેમાનોનું ભાવ અને પ્રેમથી અહીંયા સ્વાગત છે। કાર્યક્રમને આગળ વધારતા સૌરાષ્ટ્ર જલધારા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણીને વિનંતી કરીશ આ પ્રસંગે સ્વાગત પ્રવચન અને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી। થેન્ક યુ।
રામોદ ખાતે દેશને એક નવી ક્રાંતિ તરફ લઈ જાય એ માટેની શ્રી સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતીથી ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથેનો આજની આ સંવાદ શિબિરમાં આપણા ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ શ્રી રાજ્યપાલ દેવરત્નજી, કેન્દ્રીય મંત્રી અને ગુજરાત માટે વર્ષોથી સેવા કરતા એવા પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા, વર્ષોથી ખેડૂતના પ્રશ્નો માટે કાર્યરત એવા ભાઈ શ્રી પ્રફુલભાઈ, વિવિધ ગામોથી પધારેલા આગેવાનો, ઉપસ્થિત જાગૃત ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો, આજે આપણે સવારે 10 વાગ્યાથી જાગૃત ખેડૂતની સાથે જે સંવાદ કર્યો એ સંવાદમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતની હાજરી હતી, પણ આ વાદળા બહુ થયા એટલે કારણ કે બપોરે જમીન થોડા લોકો નીકળ્યા એવું દેખાય છે. બાકી આ એક ખુરશી પણ ખાલી નહોતી અને નીચે પણ બેઠા હતા. આપણી લાગણી હતી કે બધા હાજર રહે, પણ આ ઉપર વાદળાનું ટેન્શન અને ખેડૂતને કામનું ટેન્શન એટલે નજીકના ખેડૂતો એમના કામ માટે ગયા હોય એવું બને. પણ સમગ્ર ગુજરાતમાંથી અહીંયા જાગૃત ખેડૂતો રૂપાલા સાહેબ પધાર્યા છે અને સવારના સંવાદમાં બધાને ખૂબ મજા આવી છે. આ ઉપેન્દ્રભાઈની વાડી, આ 40 વીઘાની વાડી, 5 વર્ષથી આ પ્રકારની ખેતી અને લોકો ત્યાં ખુદ જોઈ શકે એવા ઉદ્દેશથી અમે આ વાડીની પસંદ કરી. આ વરસાદના માહોલ વચ્ચે કાલે અહીંયા નાનો મોટો વરસાદ અને એની વચ્ચે આ ગરમી વચ્ચે પણ ખેડૂતો બધા બેઠા અને ખૂબ સારી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભાઈઓ બહેનો, આપણને મહામહિમ રાજ્યપાલશ્રીનું પ્રેક્ટિકલ અનુભવી આપણે માર્ગદર્શન મળવાનું છે. આપણા રાજ્યપાલ પહેલાં હિમાચલના રાજ્યપાલ હતા અને એમની જે હરિયાણાની બહુ મોટી 200 એકરની ખેતી અને એ પ્રાકૃતિક ખેતી એ વર્ષોથી કરી રહ્યા છે. એમનો જે પ્રેક્ટિકલ અનુભવ છે એ અનુભવ આપણે સાંભળવાનો છે. એટલે એ આપણે વધારે હું કંઈ સમય લેવા માગતો નથી. આપણે બહુ ઝાઝા કલાકો સંવાદ કર્યો છે. એટલે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આપણને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, રૂપાલા સાહેબ આપણને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. એમને વિશેષ આવકાર સાથે હું આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું. અને આવનારા દિવસોમાં જે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રીની ઈચ્છા કે સમગ્ર ગુજરાતમાં ગામો ગામ પ્રાકૃતિક ખેતી થવી જોઈએ, તો આજે આપણને જે સવારના સંવાદમાં સમજાણું છે એ પ્રમાણે આપણે ગામો ગામ પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા માટે તૈયાર થયા છીએ. હા, તૈયાર થયા તો 2 હાથ ઊંચા કરીને જોરદાર બતાવો, લગાવો. એટલે આપણે મહામહિમજીને ખાતરી આપી છે કે આ ગામડે ગામડે પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા માટે, સમગ્ર દેશને પ્રાકૃતિક ખેતીમાં લઈ જવા માટે જે અભિયાનને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો એમાં અમે તમારે એટલે કે આ અભિયાનની સાથે છે બધા. અને પાછલા 25 વર્ષથી પાણી બચાવો, બેટી બચાવો વગેરે વગેરે અભિયાન સુરતમાં જે ગુજરાતના 12,000 ગામડાના લોકો છે એમને સાથે રાખીને જે કાંઈ પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, એમે અમારા કાર્યક્રમમાં મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી સુરત પણ આવ્યા હતા. મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટ દ્વારા અમારે રાજનાથસિંહ સાહેબ અને 122 શહીદ પરિવારને 2.5 લાખ રૂપિયાના ચેક એવા બહુ સારા કાર્યક્રમમાં મહામહિમ પણ ત્યાં પધાર્યા હતા. અને અમે એમને લાગણી વ્યક્ત કરી કે આવી એક ગામડામાં ખેતરમાં શિબિર કરવાની છે અને સાહેબે આપણને તરત જ સમય જે આપ્યો છે. એટલે ફરી આવકાર સાથે એમનો આભાર માનું છું. અને આપણે આગળ બહુ બધી ચર્ચા કરી છે અને મને વિશ્વાસ છે કે ગામડે ગામડે આપણે બધાએ આ કામ માટે આગળ વધવાનું છે. વધારે કંઈ નહીં કહેતા આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું વિનંતી કરીશ ભારત સરકારના માનનીય કૃષિ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી મુરબ્બી શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાને જોરદાર તાળીઓથી આપણને આમ
ખૂબ સારી મોજથી પોતાની ખેતીની અનુભવની વાતો કરશે. એ માટે ફરી એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. આજના આ એક વિશિષ્ટ કાર્યક્રમમાં ઝીરો બજેટ સુભાષ પાલેકરજી વાળી ખેતીના પ્રયોગમાં જેમને રુચિ છે ને રસ છે એવા ખેડૂતોની સાથે સંવાદ કરવાના અતિ સુંદર કાર્યક્રમમાં આપણને સૌને માર્ગદર્શન આપવા માટે પધારેલા આપણા આદરણીય મહામહિમ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી, પદ્મશ્રી મથુરભાઈ, એમને કાંઈક ને કાંઈક કર્યા જ રાખવાની ટેવ છે. પાણી બચાવો એનું અભિયાન ચલાવ્યું હતું, બેટી બચાવોનું અભિયાન ચલાવ્યું હતું, અને હવે અત્યારે સાંપ્રત રીતે ખેડૂતોને પોતાની ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે, એની સાથે એનો કોઈ સોલ્યુશન હોય તો શું હોય, એમાંથી આ ઝીરો બજેટ ખેતીવાળો વિષય અને વિચાર એ પણ અત્યારે જ પ્રગટ થયો. તો એમને માટે થઈને આવી જથ્થો જેહાદ, ક્યાં સુરત, ક્યાંથી અહીંયા આવવું, અહીંયા પાછી વાડી ગોતવી. મારે આ પરિવારને ધન્યવાદ આપવો છે ભાઈ ઉપેન્દ્રભાઈને, એમના સમગ્ર પરિવારને પણ અભિનંદન આપવા છે કે એમણે એક એવો નમૂનો તો રાખ્યો કે જોવા થાય. અને એ સંયુક્ત પરિવાર છે એવું મને હમણાં હાલતા હાલતા એમણે કહ્યું. એટલે એ પણ તમારા પરિવારની સફળતાનું એક મુખ્ય કારણ છે કે તમે સંયુક્ત પરિવારમાં રહ્યો છો. એવા એક સંયુક્ત પરિવારની વાડીમાં આવવા માટેનું આ આયોજન થયું. ભાષણ કરવા માટેની જરાય ઈચ્છા નથી, એની સિઝન અત્યારે છે નહીં, ને સિઝન હોય ત્યારે અમે કાંઈ ઓછા ઉતરતા નથી. એટલે એ આપણે વ્યવહારે લેવું દેવું, જ્યારે મોકો હશે ત્યારે આપણે હરીભરી પીવું. અત્યારે મારે આપના ધ્યાન ઉપર બે જ નાની વાત મૂકવી છે. કેટલીક વસ્તુઓ આપણે કરતા હોય ને કે આ થતું જ નથી, આ છેક અત્યારે થયું, પણ આપણા ગઢિયા એવું વાતું કરતા હોય છે કે અંજળ હોય ત્યારે થાય. એમ આપણે બધું ઈચ્છીએ એવું એ જે તે વખતે નથી થતું, પણ અંજળ આવે ત્યારે થાય. એમ આપણે હવે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ એમ કહો, એવો સમય આવ્યો એમ કહો, અને એવા બધા સંયોગો શરૂ થયા અને આખા એ ભારતમાં નવું ભારત બનાવવાની વાત કરે એવો વડાપ્રધાન આવ્યા. આ બધું ટાણે આવ્યું, અને એવા વડાપ્રધાન એમણે ખેતીની આવકને બમણી કરવા માટેની જાહેરાત કરી. એની સામે ઘણા સવાલો પૂછવાવાળા નીકળ્યા, પણ એમાં સવાલો પૂછવાવાળા કરતાં જવાબ આપવાવાળા જાજા નીકળ્યા. એ માટે હું તમને બધાને અભિનંદન આપું. આ જવાબ છે, આમ કરવાથી આ થઈ શકે એવું માહોલ નરેન્દ્રભાઈએ પ્રયાસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે મને એવું કહેવાનું મન થાય છે કે એમના મનમાં કોઈ સાત્વિક વિચાર દેશના વડાપ્રધાનના મનમાં આવ્યો કે મારે ખેતી માટે કંઈક કરવું જોઈએ. એટલે મને એમ લાગે છે કે એ જ ટાઈમે સુભાષ પાલેકરજીને એવો સાનક ચડ્યું કે અટાણે જ આપણે આ ઝીરો બજેટ વાળું કરવું જોઈએ. આ બધું એને શુકન થાય, કોઈ સારું કામ કરવા નીકળો તો શુકન થાય ને, એમ આ પ્રધાનમંત્રીશ્રીને પાલેકરજીના રૂપમાં શુકન થયા. અને એ શુકનને આગળ વધારવા માટે ગુજરાત આપણે ભાગ્યશાળી થયા કે આપણને સુભાષ પાલેકરની ખેતી પોતાના ખેતરમાં કરતા હોય એવા માનની રાજ્યપાલજી મળ્યા. એટલે હવે આપણે કાંઈ કોઈને બીજી વિચારવાની આવશ્યકતા ન રહે કે આપણા રાજ્યપાલ હોય એ પોતે ખુદ ખેતી કરતા હોય, ખુદ ઝીરો બજેટવાળી ખેતી કરતા હોય. અને મને તો આનંદ એ વાતનો છે કે હું એ ખેતી જોઈ આવ્યો છું, હું એને આંટો મારી આવ્યો, અને એમની આજુબાજુના ખેતરના ખેડૂતોને પણ મળ્યો. અને એમનું પોતાનું ફાર્મ છે, ત્યાં બીજી પણ ઘણી બધી એમણે ત્યાં આયુર્વેદની સરસ મજાની હોસ્પિટલ છે, ગૌશાળા છે, ગુરુકુળ છે, ખૂબ સુંદર પ્રવૃત્તિઓથી ધમધમતું આખું કેન્દ્ર છે. પણ ત્યાં આ ઝીરો બજેટ ખેતીનો પોતાનો પ્રયોગ છે. એટલે આજે દાખલા તરીકે અહીંયા અમે જોયું, અને આપણા ભાઈ ત્રણેય ભાઈઓએ આપણને દેખાડ્યું કે આ ખેતી છે, 23 વીઘાનો બ્લોક છે, એમાં હળદર છે, મરચી છે, માંડવી છે.
એટલે આ ટાઈપનું ખેતર મેં મારી જિંદગીમાં પહેલી વાર જોયું. મિક્સ ખેતર હોય આપણે પાકના જોતા જ હતા, એમાં તુવેર વાવતા હતા અને વચ્ચે કપાસ ક્યાંક નાખતા હતા, નાનું મોટું એવું કરતા હતા. પણ આ ટાઈપની સફળ ખેતી, અને એ પણ 0 બજેટવાળી ખેતી. એમણે જ મને કીધું કે અમે ગાયુંનું દૂધ વેચતા નથી અને ગાયું વેચતા નથી. મેં એમને સુધારો કરવાની વિનંતી કરી છે, તમારી બધાની હાજરીમાં કરી દઉં. ભાઈ ન વેચો દૂધ તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમારી ઉપર ભગવાનની કૃપા રહે ને તમારે કોઈ દિવસ એની આવકની જરૂર ન પડે એવો ઈશ્વર તમારી ઉપર મહેરબાન રહે. પણ બીજા 50 ઘરને ચોખ્ખું દૂધ ખવડાવવા માટે તમે આ પ્રતિજ્ઞામાં થોડીક બાંધછોડ કરો. બીજાને જરૂર છે ને. અને આપણા બધા ખેડૂતો, માનો કે આમાં બેઠા છો, તમે આ વિષયથી કન્વિન્સ થઈ ગયા હો તો એ દિશામાં વળો તો બહુ સારી વાત છે. પણ ન વળવાનું મન થતું હોય જે ખેડૂતોને અહીંયા સાંભળવા માટે ને જોવા માટે આવ્યા હોય, એને મારી વિનંતી છે કે કમસે કમ તમારા ઘર માટે આ 0 બજેટવાળી ખેતીનું ઉત્પન્ન કરેલું ખાવા માટેનો નિર્ણય કરો. આપણે ખેડૂતો કમસે કમ આપણા ઘરનું ખાવા માટે, આપણા ફેમિલી માટે આ પ્રયોગ તો અનિવાર્ય ઢબે આપણે બધાએ કરવાની આવશ્યકતા છે. એ ઉત્પાદનને માટે તમને એમ લાગતું હોય કે ઘટે છે તો એ પછીનો વિષય છે, આ બધું જોઈને સમજીને પછી કરજો. પણ કમસે કમ તમારા સંતાનો માટે, તમારા પરિવાર માટે, તમારા સગા સંબંધી માટે એના પૂરતું આપણે કેમ ગોળ જેની વાડીએ થતો, એ લોકો એના હગાવાલા હાટું થઈને ચોખા ગોળના ડબ્બા થોડાક બનાવતા. એ થોડો કાળો લાગે પણ એ ખાવા માટે સારો લાગતો. એમ આપણે બધા ખેડૂતોએ પોતપોતાના ખાવા માટેનો પ્રયોગ તો પોતપોતાના ખેતરમાં કોઈ પણ જાતની દવા ખાતર નાખ્યા વગરની ખેતીમાંથી કરવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. આટલી જ એક મારે વાત કરવી હતી. એક સારા સમાચાર તમને દેવાના હતા. આજે આપણા ગુજરાતમાં ઇફકો ખાતે કલોલનો જે આપણો પ્લાન્ટ છે ત્યાં ઇફકોના આપણા એક વૈજ્ઞાનિકે નેનો ફર્ટિલાઇઝરની આજે શોધ કરી. એ શોધને આજે લોન્ચ કરી. એટલે આપણી 50 કિલો ખાતરની જે યુરિયાની થેલી હોય એટલું ખાતર જે આપણા ખેતરમાં ગણ કરે ને વાપરવું પડે એટલું 50 મિલીલીટરની 500 મિલીલીટરના પ્રવાહીથી એ ખાતરનો રિપ્લેસ કરી શકાશે. એવા 3 ખાતરને આજે લોન્ચ કર્યા છે. નાઇટ્રોજન, ઝીંક અને કોપર. એ 3ના એમણે સંશોધન કર્યું હતું, એને આજે લોન્ચ કર્યું છે. દેશના 1000 ખેડૂતોના ખેતરમાં પ્રયોગ કાલથી શરૂ થશે. આ રવિ સિઝનમાં પ્રયોગ પૂરો થઈ જાય પછી એ 1000 ખેડૂતોનો જે સર્વે આવી જાય પછી આવતી સાલથી એને માર્કેટમાં મૂકી દેવા માટેનું નક્કી થઈ ગયું છે. આ ખેડૂતનો આ જે વૈજ્ઞાનિક છે એ અમેરિકામાં રિસર્ચ કરતો હતો અને એણે આપણા દેશની આ નરેન્દ્રભાઈની અપીલ ડબલ કરવા માટેની સાંભળી. ત્યાંથી એણે નરેન્દ્રભાઈને પત્ર લખ્યો. નરેન્દ્રભાઈ એના રૂબરૂ તેડાવ્યો. આપણા રસાયણ અને ખાતર વિભાગના મંત્રીની હારે એની બેઠક કરાવી દીધી. એને બધી સુવિધા આપી દીધી. એ અમેરિકાની નોકરીને ધંધો છોડી અને અહીંયા આવીને સેટલ થઈ ગયો. રમેશ રાલિયા એનું નામ છે. સરસ મજાનું કામ એમણે શરૂ કર્યું છે. આજે એને લોન્ચિંગ કરી અને ત્યાર પછી હું અહીંયા આવ્યો છું. આ બધા જ શુકન અત્યારે ખેતીના ક્ષેત્રમાં થઈ રહ્યા છે. આ ઉપરવાળો એક જો હરખો થોડોક હમણાં હાલે, અટાણે 8 મહિનાના વાદળા હોય એમ કરીને બેઠો છે. દેવ દિવાળી આવી એના પણ અંગે રાજ્યની સરકાર અને ભારતની સરકાર એની ચિંતા કરી રહી છે. એ વિષયને આપણે અલગથી રહીશું. આપ સૌને નવા વર્ષના ખૂબ જાજાથી જય શ્રી કૃષ્ણ, જાજાથી રામ રામ. નવું વર્ષ આપના સૌના વ્યક્તિગત જીવનમાં, સામૂહિક જીવનમાં એક ફળદાયી નીવડે એવી આપ સૌને મંગલ નવા વર્ષની કામના કરું છું. આચાર્ય દેવવ્રતજી પોતાનો વૈયક્તિગત ખેડૂત તરીકેનો અનુભવ એક રાજ્યપાલ તરીકે કહેતા હોય એવા સાંભળવા માટેના આપણને મોકા મળ્યા છે. એમાં વધારે સમય હું આપની અને એમની વચ્ચે રહેવા માંગતો નથી. આપ સૌનો પુનશ્ચ ખૂબ ખૂબ આભાર, અભિનંદન. મથુરભાઈને ધન્યવાદ આપું છું કે એમણે મહેનત કરીને આવા એક ખેતરની અંદર, વાડીની અંદર કે જ્યાં પ્રયોગ ચાલે જ છે એટલે સમજાવ જ ન પડે અને ભાળીને જે માણસ સમજી જાય ને, જોઈને જે સમજે એની જેવું એને 10 ભાષણ આપો તોય ન સમજે
એ જોવાથી તરત સમજાઈ જાય. એટલે આ ખેતરની અંદર આવો પ્રયોગ ગોઠવો એટલા માટે મથુરભાઈને પણ હું હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપું છું, ધન્યવાદ પાઠવું છું. અમારે પ્રફુલ્લભાઈની એ મથા છે, યાત્રાઓની ઉપર યાત્રાઓ કાઢે છે. હમણાં આખા એ સૌરાષ્ટ્રની અંદર એમનો એ પ્રવાસ લીધો, એમાં પણ ઘણા ખેડૂતોને આ વાત સમજાવવા માટેનો એમણે મહાપુરુષાર્થ આદર્યો છે. એમની ટીમને પણ ધન્યવાદ આપું છું. આ પરિવારને અભિનંદન આપું છું. સંયુક્ત પરિવાર છે એ કાયમ તમારો એમનેમ ટકી રહે, એની ઉપર કોઈની નજર ન પડે અને તમારા છોકરાઓને નોખા થવાનું મન ન થાય એવી માતાજીની તમારી ઉપર કૃપા રહે. આપ સૌને જાજાથી રામ રામ. થેન્ક યુ. જોરદાર તાળીઓથી શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા સાહેબને વધાવીએ. આમ આપણી મીઠી જ વાતો, હાવ દેશી ભાષામાં વાતો કરે અને પાછા આપણા બધાની વચ્ચે ભગવાનને ઠપકો આપી દે, એટલા માટે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. આ ગુજરાતનું ગૌરવ છે અને આ આજના પ્રસંગનું ગૌરવ છે. આજના કાર્યક્રમમાં એવા ગુજરાતના વિશિષ્ટ ખેડૂતોને આપણે સ્ટેજ ઉપર સન્માન કરવાના છે કે જેમણે ખૂબ સરસ મજાની પ્રાકૃતિક ખેતીમાં કામ કર્યું છે. હું વિનંતી કરીશ કે એ સન્માન કરતા પહેલાં આપણે સૌ प्रार्थना करिए. मैं विनती करता हूँ आज के हमारे मेहमान श्री माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, हम सब तालियों के करताल ध्वनि से प्रार्थना करेंगे कि आपके खेत में जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करें. थैंक यू. ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय. ओम शांति. मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार, आदरणीय पद्मश्री मधुर भाई सवाणी जी, अध्यक्ष सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट सूरत, माननीय श्री प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी, कृषि आगेवान, उपस्थित भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज आपके बीच में आकर मुझे अपार प्रसन्नता है कि पद्मश्री मथुर भाई सवाणी जी ने अपनी पूरी टीम के सहयोग से आज इस रामोद गांव में ऐसे परिवार में जो परिवार संयुक्त रूप से रहता है और खेती में भी तीनों भाई मिलकर सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के मॉडल को आपके बीच में इन्होंने प्रस्तुत किया है. आज का ये कार्यक्रम मैं इसलिए सफल मानता हूं कि इस कार्यक्रम को बड़े विवेक के साथ समायोजित किया गया और विशुद्ध गांव में, और गांव में भी उस परिवार में जो अपने खेतों में प्राकृतिक खेती को कर रहा है, और इस मॉडल को आपने अपनी आंखों से स्वयं आकर के देखा है. मैं पद्मश्री मथुर भाई सवाणी जी को बधाई देता हूं कि वो लंबे समय से जलधारा ट्रस्ट के सौजन्य से पूरे गुजरात में उन्होंने जल संरक्षण का कार्य किया, जल बचाने का काम किया. और मैं जहां भी गुजरात में जाता हूं देखता हूं जगह जगह पर चेक डैम बने हुए हैं, पानी का संचय करने की व्यवस्था बनाई गई है. ये एक बहुत आवश्यक कार्य था जो सबके उपकार का है, सबकी भलाई का है. इस मिशन में सवाणी जी ने जो योगदान किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं. उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है. आपने आज के इस कार्यक्रम में पूरे गुजरात के प्रबुद्ध किसानों को, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को यहाँ पर बुलाया है
और उनको सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि की जानकारी देने के लिए इस प्रदेश के जितने किसान पालेकर पद्धति से खेती करते हैं उनके अनुभव भी आप सबके साथ साझा किए, जिससे आपको एक नई प्रेरणा मिली। तो ये कार्यक्रम की बहुत बड़ी सफलता का आधार है। किसान भाइयों, खेडूत भाइयों, मैं भी खेडूत हूँ। मैं स्वयं जहाँ कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में, जहाँ मान्य रूपाला जी जाकर के आए हैं, उन्होंने मेरे उस गुरुकुल को अपने आँखों से देखा। हमारा 200 एकड़ का जो खेत है उसमें रूपाला जी मेरे साथ पैदल घूम करके आए हैं। तो मैं जो चर्चा आपके बीच में करूँगा वो भाषण नहीं है, अपितु मैंने खेत में जो कुछ किया है और जो अनुभव प्राप्त किया है वो आप सबको भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे उपेंद्र भाई के खेत को आपने देखा, ऐसा मेरा खेत देखने के लिए कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 50 से 100 लोग प्रतिदिन ना आते हों। पूरे भारतवर्ष और दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं। मेरा वहाँ खेत 200 एकड़ का है, 300 गायें हैं और उन गौओं का ही आधार मेरी खेती है। मैं लगभग 25 साल तक अपने हाथों से रासायनिक खेती करवाता रहा, लेकिन रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम आए, जिनको आप भी अनुभव करते हैं कि रासायनिक खेती किसान के लिए महंगी खेती हो चुकी है, वो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। रासायनिक खेती में पानी की खपत ज़्यादा होती है, रासायनिक खेती में बीमारियां ज़्यादा आती खेती में। रासायनिक खेती का उत्पाद लोग खरीदते हुए हिचकते हैं और विदेशों में उसका निर्यात आज लगभग बंद हो चुका है। दुनिया का कोई देश रासायनिक उत्पाद को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए और इसके उत्पाद जो हम खा रहे हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हम हो गए हैं। तो इसका समाधान निकले, इसके लिए मैंने इस पद्धति को बदला और अपने खेत के 5-6 एकड़ के एक टुकड़े पे जैविक खेती शुरू की। रासायनिक खेती से हटने के लिए मैंने जैविक खेती को प्रारंभ किया। पहले साल मेरा जितना भी खेत था उसको कीड़े खा गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन मैंने उस प्रयास को बंद नहीं किया, प्रयास लगातार जारी रखा। अगले साल मेरे को लगभग 50% उत्पादन उसका मिलना शुरू हुआ और तीसरे साल लगभग 80% उत्पाद मेरे को जैविक खेती से मिला। लेकिन उसमें दिक्कत जो मेरे को आई, जो कठिनाई आई, कि उसमें मेरा उत्पादन पूरा नहीं बढ़ पाया, एक प्रॉब्लम। दूसरा, मैं केचुआ पालता था, उस गोबर को उलट पलट करवाता था और वो जो गोबर की खाद में खेत में डालता था उससे जंगली घास बहुत पैदा होती थी और लेबर बहुत लगती थी। वो भी एक दिक्कत मेरे सामने रही। तो उसमें खर्चे मेरे ज़्यादा कम नहीं हुए, उत्पादन मेरा कम हो गया। तो मेरी चिंता बढ़ी कि मैं अपने 200 एकड़ खेत में इस जैविक खेती को करूँगा तो मेरा तो काम सारा खराब हो जाएगा और मेरे को लाभ नहीं मिलेगा। इस बीच में मेरा परिचय पद्म श्री सुभाष पालेकर जी से हो गया।
तो मैंने उनको अपने गुरुकुल में बुलाया और जितने लोग आप इस समय यहाँ पर बैठे हैं, इतने किसान मैंने अड़ोस पड़ोस दूर के हरियाणा प्रांत के इकट्ठे किए और सुभाष पालेकर जी का एक कैंप लगाया, शिविर लगाया और उसमें 6 दिन मैं स्वयं बैठ कर के मैंने उनके विचारों को सुना और मैंने उनकी नोटबुक तैयार की और नोटबुक तैयार करके अब मैंने किताब भी उस पर लिख दी है, जो मैं किसानों को फ्री में निःशुल्क हिमाचल प्रदेश में बांटता रहा और वो अभियान अब गुजरात में भी हम चलाएंगे। लेकिन वो पुस्तक मेरी हिंदी में थी, मैं उसका गुजराती अनुवाद करवा रहा हूँ और पूरे प्रदेश के घर घर में वो किताब जाएगी। तो पालेकर जी के जो नोट मैंने तैयार किए उस पर आधारित वो पुस्तक मैंने लिख दी और अपने खेत में अब मैंने रासायनिक को भी बंद कर दिया, जैविक को भी बंद कर दिया। अब पालेकर जी की विधि से मैंने खेती शुरू की कुल 10 एकड़ में। आपको आश्चर्य होगा, पहले ही साल मेरा उत्पादन इतना हुआ जितना रासायनिक खेती से होता है। मेरा उत्पादन कम नहीं हुआ, लेकिन वो जो हलसिया पैदा करने की परंपरा थी और गोबर को उथल पुथल करता था, बाजार से कुछ जैविक प्रोडक्ट भी खरीद के खेत में डालता था, मेरा खर्चा भी जो कम नहीं था, अब पालेकर विधि से वो खर्चा मेरा 0 पे आ गया। खर्चा मेरा घट गया, उत्पादन मेरा कम हुआ नहीं। तो मेरी समझ में आ गया कि ये रास्ता ठीक है और अगले ही वर्ष मैंने एकदम मेरा जितना खेत में खेती करता था सारी को मैंने पालेकर की विधि से करना शुरू कर दिया। लगभग 8 साल मेरे को हो चुके हैं। मेरा उत्पादन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। यह आपकी जानकारी के लिए। मैं वहाँ गेहूं पैदा करता हूँ, धान पैदा करता हूँ, गन्ना शुगर केन पैदा करता हूँ, दालें पैदा करता हूँ, उसमें वेजिटेबल्स करता हूँ, सब तरह की खेती होती है। उसमें न कोई कीटनाशक में प्रयोग करता, न एक बूंद यूरिया, एक बूंद डीएपी डालता। 8 साल से मेरे खेत में मेरी जमीन का, धरती का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है। जब मैंने अपनी खेती को शुरू किया, रासायनिक खाद डालने के कारण मेरी धरती का, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.45 पे था। अब मेरी धरती का, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.89 और 1 पर भी है। इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा। तो आप सब किसान भाइयों को मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि गुजरात की ये धरती जो क्रांतिकारी भूमि है, जिसने इस देश को महात्मा गांधी को दिया, जिस धरती ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष पैदा किए, जिस धरती ने आध्यात्मिक गुरु, इस सौराष्ट्र की धरती ने टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती को जन्म दिया। भाई और बहनों, आज इस परिवर्तन की दौड़ में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी गुजरात की धरती ने ही इस देश को दिए हैं। जिस महामानव ने आज भारत का नाम भारत में नहीं अपितु समस्त विश्व में पहुंचाने का काम किया है और आज सारी दुनिया में भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का काम किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं किसान की आय को बढ़ाने के प्रति। वो चाहते हैं मेरे देश का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो
और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े। तो इस दिशा में कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे किसान समृद्ध हो सके। तो मैं वो प्रैक्टिकल आदमी हूँ जिसने जैविक खेती को भी किया है, रासायनिक खेती को भी किया है, और मैं आज पालेकर जी की विधि पर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि ये वो पद्धति है कि जो किसान की आय को दोगुना तेगुना करने की सामर्थ्य रखती है। आप सब खुशहाल इस पद्धति से हो सकते हो। आपने उपेंद्र भाई के खेत को देखा है, आपके सामने कई वर्षों से वो इस खेती को करते हैं। यदि उनको इसका लाभ ना मिलता तो वो 1-2 साल करके इस खेती को छोड़ देते, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे, अपितु इस खेती को बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसका उत्पादन कम नहीं हो रहा, उनको लाभ मिल रहा। नंबर 1, आज हमारे बीच में प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी बैठे हैं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपना पूरा जीवन पालेकर जी की कृषि विधि को गांव-गांव में फैलाने के लिए एक रात दिन प्रयास कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष हमारे पास इस गुजरात की धरती ने दिए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब हम मिल करके इस पूरे गुजरात के वातावरण को बदलने का काम करेंगे। किसान पूरा बदले और प्राकृतिक खेती की दिशा में कदम बढ़ाए। यदि गुजरात बदलता है तो उससे पूरा देश बदलेगा। आज तक गुजरात की धरती का ये इतिहास रहा है, यहाँ के महापुरुषों ने इस देश को नई क्रांति दी है, नई सोच दी है, नया जीवन दिया है, नया संकल्प दिया है। आज भी मैं समझता हूँ कि यदि गुजरात के किसान मजबूती से खड़े हो गए और इस प्राकृतिक खेती को हमने पूरे प्रदेश में एक अभियान के रूप में शुरू कर दिया तो पूरा देश और दुनिया बदल सकती है, ऐसा मेरे को विश्वास है। भाइयों और बहनों, अभी आने वाले इस दिसंबर में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर हमने एक निर्णय लिया है कि सुभाष पालेकर जी भी उस शिविर को लेंगे और उसमें हम वीडियो द्वारा पूरे प्रदेश के किसानों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं। और एक निर्णय लिया कि एक केंद्र पर जहां सुभाष पालेकर जी होंगे वो उनके सामने लगभग 3-4 हजार किसान होगा और गुजरात के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 1000 किसान होंगे और वहीं से पूरे किसानों को प्रशिक्षण देने की एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें 6 दिन वो शिविर चलेगा और गुजरात के लगभग 35,000 किसानों को हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। और ये ट्रेनिंग मैं समझता हूँ कि गुजरात के वातावरण को बदलेगी, किसान के भविष्य को बदलेगी और 35,000 किसान एकदम ट्रेनिंग लेंगे और वो अपने अपने गांव में जाकर उपेंद्र भाई जैसे मॉडल खड़े करेंगे। तो उनको देख देख करके हम पूरे गुजरात के किसानों के खेतों को बदलना चाहते हैं। और निश्चित रूप से अभी हम आ रहे थे, रूपाला जी बता रहे थे कि मेरे प्रदेश का किसान बहुत मेहनती है, बहुत जुझारू है। ये जो संकल्प कर लेता है तो उस दिशा में फिर वापस मुड़ कर के नहीं देखता। इतना मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को आप यदि पूर्ण रूप से समझ के ठीक ढंग से ट्रेनिंग लेकर अपने खेत में करते हैं तो आपका उत्पादन कम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है।
क्योंकि मैंने अपने खेत में ऐसा किया है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो खर्चा खेत का है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इस प्राकृतिक खेती में पालेकर जी की विधि में एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती हो सकती है। एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती। इसलिए आज आपने संकल्प लेकर के उठना है, जिनके घरों में देसी गाय नहीं, वो देसी गाय का प्रबंध करो और 30 एकड़ की खेती एक गाय से, इससे सस्ता, इससे सरल दूसरा तरीका हो नहीं सकता। गाय आपके घर में होगी, परिवार दूध पिएगा, बच्चे दूध पिएंगे, वो स्वस्थ और बलवान होंगे। गाय परिवार बढ़ाएगी। आप यदि तीसरे साल एक गाय भी अच्छी नस्ल की तैयार करते हो तो वो भी आपकी 50-60 हजार रुपए का लाभ देने वाली होती है। एक गाय अपने कितने बड़े परिवार को बढ़ाने का काम करती है। तो गाय को वेदों में गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, ऐसा वेदों में वर्णित है। और हम गाय को माँ मानते हैं, हिंदू समाज के और पूरे वर्ग के लोग। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, अभी मैंने एक यात्रा की 5-6 दिन की सौराष्ट्र की। मैं यहीं से चला था, राजकोट से पोरबंदर गया, द्वारका गया, सोमनाथ गया और गिर के जंगलों तक गया, दीव तक गया। लेकिन जहाँ भी मैंने देखा, देसी गायों की बहुत बड़ी संख्या सड़कों पर धक्के खा रही। वो गाय हमने छोड़ दी। हम गाय को माँ भी कहते हैं, गाय का पूजन भी करते हैं, लेकिन सड़कों पर भी हम ही छोड़ रहे हैं। तो भाई ये परंपरा हमारी संस्कृति की नहीं है। गाय माता है, उसके पेट में परमात्मा ने, हमारे हरियाणा के लोग कहते हैं देसी गाय के पेट में 1.25 मन सोना है, 1.25 मन सोना है। ये बात कहने की नहीं, प्रैक्टिकल करो तो ये होता है। मेरे पास 300 गाय हैं और मैंने गाय की नस्ल सुधारने का भी काम किया। मेरे पास भारतीय नस्ल की 6 नस्लें हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी और लाल सिंधी। ये 6 नस्ल की मेरे पास गाय हैं और उस नस्ल को मैंने उन्नत किया, ब्रीड सुधार का कार्यक्रम करके। स्वयं अपने आप मैंने जो गाय 8 किलो दूध देती थी, उस गाय की अगली नस्ल सुधार कर करके मैंने अच्छे नंदी इकट्ठे किए, उनसे नस्ल सुधार कर करके 8 किलो की गाय से मैंने 20 किलो की गाय तैयार की। आप जाकर के देख सकते हैं। अब देसी मेरी गाय 18, 20, 25 किलो से कम दूध नहीं देती। अब आप बताओ, जो देसी गाय 18, 20 किलो दूध देगी, उसे सड़कों पे कोई छोड़ेगा क्या? कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं आप सब जागृत किसानों को आह्वान करता हूं कि आप नस्ल सुधार का भी तरीका सीखिए। हमने नस्ल सुधार के तरीके नहीं आते, हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे। आज इस परंपरा को जीवित करने की बहुत आवश्यकता है। हमारी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। हमारी जो नस्लें 20-25 किलो दूध देती थी, आज वो 5, 6, 7, 8 किलो पर आ गई हैं। जो गाय 100 रुपये का खाएगी, 50 रुपये का देगी, उसे कोई नहीं पालने वाला। आज आर्थिक युग है, हम सब लाभ की बात सोचते हैं। जो बेटा कमाता वो प्यारा लगता है, जो कमाता नहीं उस बेटे को भी माता पिता पसंद नहीं करते। आज ये स्थिति हमारी बन चुकी है। इसलिए गाय बचानी है, गाय का रक्षण करना है, तो गाय का संवर्धन करना होगा, उसकी नस्ल को सुधार करना होगा।
और गाय की नस्ल का सुधार होता है अच्छे नंदी से। आप अपने गांव में, गौशालाओं में, घर पे जब भी गाय को आप क्रॉस कराते हैं तो उसकी बहुत उन्नत नस्ल देखो कि नंदी की माँ का दूध कितना है, नंदी की बाप की माता का दूध कितना है। जितना मैक्सिमम दूध नंदी की माँ का होगा, उसके पिता का होगा, उससे जो बच्चे होंगे वो उतने उन्नत पैदा होंगे। और गोत्र सिस्टम, एक नंदी एक गांव में, एक गौशाला में 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 2.5 साल के बाद उसे दूसरी गौशाला में भेज दो और वहां से दूसरा ले आओ। इसमें जैसे हम गोत्र छोड़ करके विवाह करते हैं ना, मनुष्यों में छोड़ते हो कि नहीं, समझने मेरी बात को। गोत्र छोड़ के जैसे हम शादी करते हैं, ऐसे गोत्र छोड़ के आपस में मिलान इन पशुओं में भी चलता है। नहीं तो इन ब्रीडिंग हो करके वो नस्लें बर्बाद हो गई। हमारी गाय जो 25 किलो दूध देती थी वो 5 किलो पे आ गई। मैंने इसी नस्ल सुधार करके, इस सिस्टम को अपना करके 8 और 5 किलो दूध वाली गाय को 20 और 25 किलो की मैं बना चुका हूं। वो मेरे पास हैं, जाकर के मेरे गुरुकुल में देख सकते हैं आप। तो ये अभियान गौ संवर्धन का भी आपने चलाना पड़ेगा। मुझे अपार प्रसन्नता है कि सौराष्ट्र के क्षेत्र में गिर नस्ल की बहुत अच्छी अच्छी गाय कुछ परिवारों ने पाली हुई हैं। मैं उपेंद्र भाई के यहाँ जब प्रवेश किया तो इनके यहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छी गिर नस्ल की गाय दूर से दिखाई दी। अब मैं देख करके जाऊंगा और जगह पर भी आप देखिए और गौ संवर्धन का काम करो। और कोई किसान ऐसा गुजरात के प्रांत में नहीं रहना चाहिए जिसके घर में एक देसी गाय ना हो। हर किसान में देसी गाय जानी चाहिए, घर में हर किसान के घर में देसी गाय जाए। ये अभियान करो। जिस दिन देसी गाय आपके घर चली गई, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आपकी वृद्धि को कोई रोक नहीं सकता, आपके खेत को आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता। आप प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ो। देसी गाय के, एक गाय से 30 एकड़ की खेती, इतना सरल तरीका जो पालेकर जी ने दिया है वो आज कहीं नहीं है। और आपको बता देना चाहता हूं, गाय के गोबर गौमूत्र में वो सब जीवाणु हैं, वो सब तत्व हैं जो मिट्टी को चाहिए। इससे अलग कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ये मैंने अनुभव किया है। मैंने अपनी मिट्टी को, जब मैं रासायनिक खेती करता था उसको भी मैंने टेस्ट कराया, और जब मैंने प्राकृतिक खेती की मिट्टी के मैंने फिर भी सैंपल टेस्ट कराए। गाय के गोबर गौमूत्र ने जो करिश्मा किया है, 2 तरह की खाद, जीवामृत और घन जीवामृत, ये आपको बता दिया गया होगा ना। जीवामृत कैसे बनता है समझ में आ गया। उसको बनाने की अब मैंने बताने की जरूरत नहीं। और घन जीवामृत, ये क्रांतिकारी प्रोग्राम है। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं 2 और अपनी बात समाप्त करता हूं, आपकी समझ में आएगा। मेरे खेत में 2 भाग थे। आधा खेत मैंने स्वयं में करता था। मेरा आधा जो खेत था, मैंने पड़ोसी एक गांव था उसके लोग मेरे पास में आए और कहने लगे, जी आप लोगों पे तो ज़मीन ज़्यादा है, आप ये आधी ज़मीन हमें लीज पे, भाड़े पे दे दो, हम आपको इसका किराया दे देंगे और ये ज़मीन में हमारा भी गुजारा हो जाएगा। तो मैंने अपने 200 एकड़ का आधा हिस्सा गांव के 10-15 लोगों ने मिलकर के 8-8, 7-7, 10 की एकड़ जमीन ले ली भाड़े पे। समझ गए, भाड़े पे। तो वो ले ली। तो वो लोग पिछले 20 साल से, 25 साल से उसमें यूरिया डीएपी डालते रहे। और पिछले 2 साल पहले वही किसान जो 20-25 साल से मेरा खेत बोते थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को कहा
कि जी अब आपका खेत हम भाड़े पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे भाई? कि ये बंजर है, इसमें कुछ नहीं पैदा होता, इसलिए अब हम इसमें खेती नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा जब मैंने दिया था तब भी बंजर था क्या? कि ना, तब तो बहुत पैदा होता था, इसीलिए तो हमने लिया था, लेकिन अब कुछ नहीं पैदा होता इसमें। खेडूत भाइयों ध्यान से सुनो, मेरे आधे खेत 100 एकड़ सोना उगलता है और मेरा 100 एकड़ बंजर बना दिया उन्होंने और मेरी जमीन छोड़ दी 2 साल पहले, ये कह करके इसमें कुछ नहीं पैदा होता। तो मैंने कृषि वैज्ञानिक बुलाए जिसका नाम था डॉक्टर हरिओम, अब भी हैं वो कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट हैं वो मेरे पास मैंने बुलाए और उनको मैंने अपनी समस्या बताई कि भाई ये खेडूत मेरे खेत को लेने से ना करते हैं, मेरी जमीन कहते हैं बंजर हो गई है, कुछ पैदा नहीं करती, अब मैं क्या करूं? तो उस कृषि वैज्ञानिक ने मेरे को कहा जी यूं नहीं पता लगेगा, मैं आपकी इस धरती के मिट्टी के सैंपल लूंगा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की लेबोरेटरी में भेजूंगा, वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद बताऊंगा कि जमीन की स्थिति क्या है। तो उस कृषि वैज्ञानिक ने मेरे 100 एकड़ खेत के 200 सैंपल एक इस कोने से एक इस कोने से 200 सैंपल मिट्टी के लेकर यूनिवर्सिटी में भेज दिए। लगभग 1.5 महीने का बाद वहां से रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में क्या आया, इस धरती का मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3.4। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? कृषि वैज्ञानिक ने कहा ये किसान बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जमीन बंजर हो गई, ये कुछ नहीं पैदा करेगी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं? कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि मैं तरीका बताता हूं, आप जैसे मैं कहूं वैसा करोगे, जैसे धीरे धीरे ये बंजर बनी है, ऐसे मेरे उपचार से धीरे धीरे ये 10-20 साल में उपजाऊ बन जाएगी। और कृषि वैज्ञानिक ने कागज पेन लेके एक लिस्ट बनाई, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना कॉपर, इतना फास्फोरस, वो लिस्ट बनाई और कहा जो अवशेष होंगे खेत के वो इसमें कटेंगे, ऐसे धीरे धीरे उपजाऊ बनेगी। मैंने बोला साइंटिस्ट महोदय, जो लिस्ट आपने बनाई यही तो ये किसान खेत में डालते थे, इन्होंने ही तो ये बंजर बनाई, आप फिर वही लिस्ट बना रहे हो, इससे कैसे उपजाऊ बनेगी? तो वो कृषि वैज्ञानिक कहने लगे कि साइंटिस्ट आप हैं कि मैं हूं? मैं कहा मैं तो खेडूत हूं, साइंटिस्ट तो तुम ही हो, लेकिन जो तरीका तुम बता रहे हो ये मैं नहीं अपनाऊंगा, इस तरीके ने तो मेरी धरती को बंजर बना दिया। तो उसने कहा तुम क्या करोगे? मैंने कहा ये पालेकर जी की विधि करूंगा, इसमें जीवामृत, घन जीवामृत डालूंगा। तो उस साइंटिस्ट ने मेरे को चैलेंज किया कि आचार्य जी, यदि आप इस धरती को इस पालेकर की विधि से उपजाऊ बना सके तो भारत के धरती के किसी कोने पर कुछ भी पैदा हो सकता है, ये कुछ नहीं होगा, आप गलती मत करो, आप देरी करोगे, जैसा मैं करूं वैसे करो। मैंने कहा अब मैं वैसे नहीं करूंगा, पालेकर जी की विधि अपनाऊंगा। मैंने साइंटिस्ट की बात नहीं मानी, किसान मेरी जमीन बंजर छोड़ गए। ये जमीन उन्होंने अप्रैल 2 साल पहले छोड़ी थी और जून 2017 में मैंने अपने खेत में जीवामृत डाला, घन जीवामृत डाला और धान आरोपित कर दिया। 2 महीने के बाद धान लहलाने लग गया खेत में,
बहुत सुंदर फसल खड़ी हो गई। मैंने उस कृषि साइंटिस्ट को बुलवाया और मैंने उनको खेत दिखाए। ये वही खेत है ना जिसकी मिट्टी को आपने टेस्ट कराया था? उन्होंने कहा खेत तो वही है, धरती तो सरकती नहीं वही थी। तो कृषि वैज्ञानिक देख के आश्चर्य में था, ये फसल कैसे हो गई? मैं कहा इसी पद्धति से हुई जो पालेकर जी की विधि, जीवामृत घन जीवामृत, 1 गाय से 30 एकड़ की खेती, ये फार्मूला मैंने अपनाया है। वो कृषि वैज्ञानिक उसके बाद बिना बुलाए हर 20वें दिन मेरे खेत में आता और खेत देख के जाता। और जब खेत कटने का, हार्वेस्टिंग का समय आया, तो उसने हमें कहा कि जिस दिन ये धान काटो और जिस दिन धान को तोलो उस दिन मेरे को जरूर बुलाना है। हमने 2 दिन पहले कृषि वैज्ञानिक को डेट दी और वो कुर्सी बिछा करके बैठ गए। हमने धान काट के तोलना शुरू किया तो प्रत्येक एकड़ में 20-25 क्विंटल प्रति एकड़ धान पहले ही साल पैदा हुआ। पहले ही साल कृषि वैज्ञानिक हिल गए और वो कहने लगे कि मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, मेरे को नहीं पता था ये भी तरीका हो सकता है। हमने तो यूरिया, डीएपी, जिंक, फास्फोरस ही डलवाए और उसके बाद वो कृषि वैज्ञानिक इतने हमारे अनुकूल आए कि अब मेरे 200 एकड़ खेत को वही डॉक्टर हरिओम देखते हैं, वही खेत को संभालते हैं। इतना परिवर्तन उस कृषि वैज्ञानिक में आया। भाई और बहनों, फिर उनकी रुचि बढ़ गई। उस कृषि वैज्ञानिक ने एक और वैज्ञानिक अपने साथ जोड़ा जिसका नाम है डॉक्टर बलजीत सारन। वो जीवाणुओं पे काम करते हैं और ये दोनों साइंटिस्ट अब हमारे खेत में डेली नए नए परीक्षण करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने क्या परीक्षण किया, हाँ ये बात बीच में छोड़ गया मैं, ध्यान करो। जब ये उत्पादन पहले साल हुआ तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। अगले साल उसी खेत में धान की पैदावार पहले साल हुई 20 से 25 क्विंटल और अगले साल हुई 30 से 32 क्विंटल, 30 से 32 क्विंटल और इस साल हुई है 35 क्विंटल हमारे उसी खेत में जो बंजर हो गया था 3 साल में। अभी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने उसी धरती के मिट्टी के सैंपल दोबारा यूनिवर्सिटी में भेजे और यूनिवर्सिटी से वो सैंपल आया तो उसमें जिस धरती का 3 साल पहले ऑर्गेनिक कार्बन 0.3-0.4 था, उस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.8-0.9 हो गया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। ये कृषि वैज्ञानिकों की समझ से बाहर का मामला है, वो इसको मानने को तैयार नहीं। ये क्रांतिकारी काम देसी गाय के गोबर गोमूत्र में है। अंतिम बात, उन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, अभी कुछ दिन पहले जो लोग पड़ोस में रासायनिक खेती करते हैं ऐसे 5 किसान के खेत में वो गए और उन्होंने उन खेतों की मिट्टी के सैंपल लिए और उस मिट्टी को 5 किसानों की मिट्टी को इकट्ठा किया और उसमें 1 ग्राम मिट्टी निकाली और लेबोरेटरी में ले जाकर उस पर रिसर्च किया तो 1 ग्राम रासायनिक मिट्टी में 20 से 25 करोड़ जीवाणु मिले। 20 से 25 करोड़ जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में। और फिर उन्होंने मेरे खेत की 5 जगह से मिट्टी ली और 5 जगह से मिट्टी लेकर इकट्ठा किया और उसमें 1 ग्राम मिट्टी में लैब में ले जाकर टेस्ट किया। अब ध्यान से सुनना, रासायनिक खेती में 25 करोड़ जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में मिले और मेरे 161 करोड़ जीवाणु मिले। 161 करोड़, इतना अंतर है। और इसका कारण
केवल देसी माँ गौ माता का गोबर और गौमूत्र, इससे अलग कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो आज मथुर भाई सवानी जी ने, उनकी टीम ने आप लोगों को पालेकर की विधि से अवगत कराने के लिए जो महत्वपूर्ण आयोजन किया है, और मैं आपको चेहरे से अनुभव कर रहा हूं, आप बहुत प्रगतिशील किसान हैं, सारे पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं। आज आपने पूरे दिन जो इस पद्धति से खेती करते हैं उनके अनुभव भी सुने हैं, आपने खेत भी सामने जा कर के देखा है। इससे आगे अब आप निश्चय लेकर के जाएं कि अपने अपने खेतों में जाकर इस पद्धति की खेती को शुरू करेंगे। आप पे जितना खेत है, आप पे 10 एकड़ है तो 2 एकड़ में करें, 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में करें, एक बार शुरू करें। लेकिन इस विधि को करना पड़ेगा समझदारी से। यदि पूरी विधि नहीं की तो रिजल्ट नहीं आते। पूरी को समझो और तरीके से इसको करोगे तो आपका कल्याण होगा, सबका भला होगा। भाइयों और बहनों, इस खेती का लाभ ये नहीं है कि केवल आपकी आमदनी बढ़ेगी। इस खेती के करने से धरती आपकी उपजाऊ बनेगी। मेरी धरती जैसे बंजर बन गई ना रासायनिक से, आपकी भी ऐसे ही बनने वाली है। आपने बचना है तो इस पद्धति पे आना ही पड़ेगा, और मेरी तरह आपकी बंजर भी उपजाऊ बनेगी। आने वाली पीढ़ियों को हम उपजाऊ जमीन देंगे। नंबर 1 लाभ। नंबर 2, आज ग्लोबल वार्मिंग, सारी दुनिया चिंतित है। सारी दुनिया अब खतरा है तो केवल ग्लोबल वार्मिंग का है, जलवायु परिवर्तन का है। आपने देखा अब क्या हुआ। आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं, कपास की खेती कर रहे हैं। आजकल कोई वर्षा का समय है जो बारिश हो रही है, इन दिनों कोई वर्षा होती थी। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। दुनिया में तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कहीं जंगल जल रहे हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम सामने आ रहा है। ये रासायनिक खेती से होता है। आप प्राकृतिक खेती करोगे, इससे जलवायु परिवर्तन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। ये पुण्य आपको मिलेगा, इसका पुण्य आपको मिलेगा। 2, नंबर 3, जल सबसे महत्वपूर्ण है। अपना गुजरात प्रदेश खुश्क प्रदेश है, इसमें जल का अभाव है। इस पद्धति से मैंने अपने खेत में 50% पानी प्रैक्टिकल मेरा कम लगता है। ये प्रैक्टिकल मैंने किया अपने खेत में। 50% पानी की बचत आपकी इससे भी ज्यादा हो जाती, लेकिन इतना तो मेरे खेत में मैंने अनुभव किया, इससे पानी की बचत होती। तीसरा लाभ। चौथा, गाय आधारित खेती होने से गौ माता की जय, गौ माता की जय बोलते हैं ना दूध पीते ना पालते, इसलिए गौ माता की हो जाएगी जय। ना दूध पियो ना पालो, गौ माता की जय। केवल मंदिर में तिलक लगा दो, ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये धोखा है, ये गौ का पालन नहीं है। इसको बदलना पड़ेगा। आप यदि प्राकृतिक खेती करोगे, आपके घर घर में गौ माता चली जाएगी, ये गौ का भी भला होगा। 5, नंबर 6, आज भारत देश के उत्पाद जो किसान करता है, विदेश में उसका निर्यात नहीं हो रहा। कोई देश उसको लेने के लिए तैयार नहीं, कहते इसमें जहर की मात्रा ज्यादा है। यदि प्राकृतिक खेती करोगे तो आपका निर्यात विदेशों में होगा, आपको कई गुना लाभकारी मूल्य मिलेगा, आपकी आय में वृद्धि होगी। और छठा, आपने जो अस्पताल भरवा दिए बीमार कर करके लोगों को, यूरिया डीएपी कीटनाशक इतना खिला दिया, आज हर आदमी डायबिटीज का रोगी बन रहा है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, किसी को कैंसर है। ये सब देन इस रासायनिक कीटनाशक की है। इतना जहर खेतों में डाल दिया कि हमने सारी दुनिया को बीमार करके अस्पताल भेज दिया। आप इस पुण्य के भागी बनोगे, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करोगे। और अंतिम 7वां लाभ इसका है,
आपकी आय दोगुना होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उत्पादन आपका घटेगा नहीं, लागत आपकी लगेगी नहीं, 1.5 गुना लाभ हो गया। अब आप उत्तर देना मेरी बात का, चुप मत बैठना भाई, मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी क्लास में चुप बैठना गलत है, ठीक है? आपसे मैं पूछता हूं, एक तरफ रासायनिक उत्पाद है, दाल, सब्जी, फल, दूध रासायनिक रखा आपके सामने, और दूसरी तरफ पालेकर जी की विधि का प्राकृतिक आहार है। यह रासायनिक आहार कैंसर पैदा करेगा और प्राकृतिक आहार स्वास्थ्य प्रदान करेगा। रासायनिक 100 रुपए किलो है और प्राकृतिक 200 रुपए किलो है। ये कैंसर पैदा करेगा, स्वास्थ्य पैदा करेगा। आप बताओ ईमानदारी से, रासायनिक खरीदोगे या प्राकृतिक खरीदोगे? क्यों खरीदोगे? कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, ठीक है कि नहीं? तो आपका उत्पाद डबल रेट पर बिकेगा। मेरे उत्पाद, मेरा गेहूं खेत में खड़ा होता है, उससे पहले मेरे अकाउंट में लोगों के पैसे जमा हो जाते हैं, और पता कितने होते हैं? सरकारी गेहूं का रेट है 1800 रुपए क्विंटल और मेरे गेहूं का रेट है 4000 रुपए क्विंटल। 4000 रुपए क्विंटल में लोगों को पूरा नहीं कर पाता, इतनी डिमांड मेरी है। मैंने सब्जी का अपनी शॉप बना रखी है अपने गुरुकुल के बाहर, पूरा शहर लाइन लगा करके खरीदता है, जो रेट बाजार का उससे डबल रेट में जाती है। गन्ना, शुगर केन 1 एकड़ का मैंने 10 लाख रुपए में बेचा, 10 लाख रुपए में। वहां क्या किया मैंने? वो चरखी लगाई, रस निकालने की मशीन। मैंने अपने खेत में गन्ना गिनती करवाई, 25,000 गन्ने के पौधे थे मेरे 1 एकड़ में, और एक गन्ने से 4 गिलास रस निकलता था, और 1 गिलास 10 रुपए में बेचा था। हो गया कि नहीं 10 लाख का पूरा? क्यों साहब? ये प्रैक्टिकल है। आप थोड़ा सा अपने आप को संभालो और बदलो और इस प्राकृतिक खेती को अपनाओ। प्रधानमंत्री जी का जो सपना कि 2022 तक भारत के किसान की आय 2 गुना होनी चाहिए, यदि आप इस पद्धति पे आगे 2 गुने से भी ज्यादा कर पाओगे और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य सफल होगा। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, और भाई मथुर भाई सवानी जी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इस आयोजन को यहाँ संपादित किया, उन सबको मैं बधाई देता हूँ और आशा करके जाता हूँ कि अब हमने ठान लिया है। केंद्र सरकार, माननीय मंत्री रूपाला जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये पूरे देश में घूम घूम कर इस पद्धति का प्रचार और समर्थन करते हैं। ये मेरे खेत में भी जा कर के आए हैं। ऐसे भले और समर्पित मंत्री आज रात दिन इस मिशन पे लगे हुए हैं कि भारत के किसान का भला हो, तो ये मिशन बढ़ेगा। प्रदेश सरकार गुजरात की इस मिशन में पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है और उन्होंने पूरी मशीनरी को इस दिशा में आगे बढ़ाया कि मेरे प्रदेश का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो। तो इसी बात को लेकर अगला ये शिविर होगा, आप अपनी बुकिंग अभी से कराएं। 5 से 11 दिसंबर पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलने वाला है, ताकि घर घर इस खेती का हम प्रचार कर सकें। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। फिर से एक बार जोरदार तालियों से हम आचार्य जी का स्वागत करें। દરેક મિત્રોને વિનંતી છે, પ્લીઝ પ્લીઝ કાળા ઠેલાવાળા મિત્રો બેજા પ્લીઝ, કોઈ પણ હવે આપણે 10 મિનિટથી વધારે કાર્યક્રમ ચાલવાનો નથી। 10 મિનિટમાં કોઈ ઊભા ન થાય પ્લીઝ। આપણે અહીંયા જે આ પાછલા 5 વર્ષથી 7 વર્ષથી 3 વર્ષથી જે ખેડૂતો ખેતી કરે છે એવા ખેડૂતોને અહીંયા આપણે સન્માન પત્ર આપીને પ્રોત્સાહિત કરવાના છે અને તમારી તાળીના અવાજની જરૂર છે। એક પણ ખેડૂત જાય નહીં। આગલો કાર્યક્રમ શરૂ કરો ફટાફટ આગળ। હું ઝડપથી જે ખેડૂત મિત્રોના નામ બોલીશ તેઓ
આચાર્ય શ્રી દેવવ્રતજીજી પાસે પધારશે અને સન્માનપત્ર સ્વીકારશે. સૌથી પહેલાં હું વિનંતી કરીશ ખેડૂત આગેવાન માનनीय શ્રી प्रफुल्ल सेंजलिया पधारशे અને मैं विनती करता हूँ आचार्य देवव्रत जी को सब खेडूतों को अपने कर कमलों से सम्मानित करे. और सबसे पहले प्रफुल्ल भाई को सम्मानित करने के लिए मैं विनती करता हूँ. तालियों से करताल ध्वनि से हम सभी खेडूत मित्रों का स्वागत करेंगे. फिर सब खेडूत मित्रों को मैं विनती करूंगा कि आप स्टेज पे जाइए. हरीश भाई गाजीपरा, रोहित भाई गोटी और सम्मान लेते हुए आगे के स्टेज से आप अपना स्थान आगे निकले. अजीत सिंह गोहिल, वालजी भाई कात्रोडिया, चंदू भाई सुराणी, कनु भाई भट्ट, भरत भाई नारोला, हरिभाई जसाणी, प्रवीण भाई आसोदरिया. આપણે તાળીઓથી આ ક્રાંતિકારી ખેડૂતોને વધાવશું અને ખૂબ સરસ મજાના આજના પ્રસંગને આપણે માણી રહ્યા છીએ. ત્યારે રાષ્ટ્રગાન પછી જ આપણે છૂટા પડશું. શ્રી પ્રવીણભાઈ આસોદરિયા, અચ્યુતભાઈ પટેલ, વનરાજસિંહ ચૌહાણ, નારસંગભાઈ મોરી, વિનુભાઈ લીંબાણી, પોપટભાઈ ડાભી, તુલસીભાઈ ઘોરી, વિનુભાઈ પટેલ, હરદેવસિંહ ગોહિલ, નરવણસિંહ ગોહિલ, જીપી કોટડિયા, योगराजसिंह गोहिल, चंदूभाई भंडेरी, हरदासभाई बामरोलिया, काळूभाई हुंबल, केतनभाई परवाड़िया, परेशभाई कुंभाणी, तुलसीभाई गाजीपरा, घनश्यामभाई राजपरा, भीखाभाई पटोलिया, विपुलभाई मुंजपरा. जे खेडूत मित्रों सन्मान थई गया पछी पाछा एमना योग्य स्थाने बेसशे. उपेन्द्रभाई नाथाणी, दिनेशभाई कटेशिया, महेशभाई नकुम, रतिभाई शेठिया, कांतिभाई पटेल, संजयभाई मेंदपरा, भीखाभाई भटुका, महेंद्रभाई पटेल, नरेशभाई दलसाणिया, विजयभाई डाभी, भोपाभाई खसिया, रायसंगभाई परमार, लताबेन पटेल, अश्विनभाई माथुकिया, हितेशभाई दोमड़िया, वनराजसिंह गोहिल, शैलेषभाई खोकर, घनश्यामभाई काकड़िया, जितेनभाई डोबरिया, मनोजभाई होरा, जगदीशभाई देसाई, बच्चूभाई वाघमसिंह, वसंतभाई भंडेरी. आ तमाम खेडूत मित्रों ने जोरदार ताळीओथी वधावीए. खेडूत मित्रों खूब ज झड़पथी जे प्रमाणे आपनु नाम ए प्रमाणे सन्मानपत्र लई અને ફરી પાછા આપના સ્થાને બેસી જશો. અને આપણે વાત થઈ એ પ્રમાણે જો નામમાં ફેરફાર હશે તો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા પછી વિષ્ણુભાઈ, ચંદુભાઈ આખી ટીમ મદદ કરી અને આપનું સન્માનપત્ર આપના સુધી પહોંચાડશે. કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જતા ખેડૂતોના સન્માન થયા પછી નાનકડી આભાર વિધિ આ વ્રજરાજ ફાર્મના શ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ નાથાણી તૈયાર રહેશે. જેવા ખેડૂત મિત્રોનું સન્માન પૂર્ણ થશે ત્યાર પછી તુરંત આભાર વિધિ થશે અને ત્યાર પછી રાષ્ટ્રગાન પૂર્ણ કરી અને આપણે સૌ આજની શિબિરને પૂર્ણાહુતિ કરશું. આજનો કાર્યક્રમ એટલે સમગ્ર ગુજરાત અને દેશને ખૂબ મોટું ઉદાહરણ પૂરું પાડે એવો સરસ મજાનો કાર્યક્રમ. दोपहर बाद आचार्य जी ने अपनी खेत की जो लाइव प्रैक्टिकल बातें हमारे सामने रखी है, हम सोच सकेंगे कि हम भी ये सब कर सकते हैं. हमारे पूर्वजों, हमारे पिताश्री, उनके पिताश्री इसी ही तरह वो खेती कर रहे थे. यही खेती जब हम करने शुरू करेंगे तो हमारा परिवार भी उन्नति करेंगे. हमारे परिवार के साथ हमारा पूरा समाज उन्नति करेंगे, पूरे समाज तंदुरुस्त बनेंगे. हमारे घर तक कोई भी रोग नहीं आएगा, हमारे परिवार में किसी को भी कैंसर नहीं होगा. इस तरह का खूब अच्छी बातें प्रैक्टिकल अपने फार्म में जो कार्य किया है उसके लिए फिर एक बार हमारी करताल ध्वनि से तालियों से हम आचार्य देवव्रत जी को फिर से हृदय से धन्यवाद करेंगे. जो खेडूतों ने अहींया छेल्ला घणा समयथी प्राकृतिक खेती करी અને પરિવારોને ખૂબ સારી રીતે નવી ક્રાંતિ અપાવી છે એવા તમામ ખેડૂતોને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને ખેડૂતોના સન્માન થયા પછી આ ફાર્મના માલિક અને આ ફાર્મમાં આખો દિવસ માટે ખૂબ સરસ મજાની વ્યવસ્થા માટે સૌરાષ્ટ્ર જલધારા ટ્રસ્ટ, આ સાથે લક્ષ ચેનલ, જીટીપીએલ ચેનલ, શેડ એન્ડ લાઇટ, શિવ સાઉન્ડ, રૈયાણી મંડપ સર્વિસ, કનૈયા કેટરર્સ, વ્રજરાજ ફાર્મ, આ તમામે તમામ લોકોને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. અને હવે એ સમય થયો છે કે દેશના એરપોર્ટ ઉપર આપણે પીઝા ખાઈએ છીએ, એ જ દેશના એરપોર્ટ ઉપર ખેડૂતનો સ્ટોલ હશે અને ત્યાં સરસ મજાની ગીર ગાયની સુખડી અને થેપલાનું પેકેટ તમે આપશો અને ફોરેનરો એ તમારું પેકેટ ખાશે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. હું આભાર વિધિ માટે ઝડપથી વિનંતી કરીશ ઉપેન્દ્રભાઈ નાથાણીને, પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવશો અને ત્યાર પછી રાષ્ટ્રગાન કરી અને આપણે કાર્યક્રમને પૂર્ણ કરશું. શ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ. અમારા ગામના આંગણે અમારા ફાર્મ પર આજે સૌરાષ્ટ્ર જલધારા ટ્રસ્ટ દ્વારા ખેડૂતનું સમાજ શિબિર
માં ઉપસ્થિત તમામ લોકોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ખેડૂત મિત્રો, સામાજિક અને રાજકીય આગેવાનો, માનનીય શ્રી રાજ્યપાલ તથા તમામ મહેમાનો, ખેડૂત મિત્રો અને ભાઈઓ, રામોદ ગામના સહકારથી સ્વયંસેવક, પોલીસ સ્ટાફ, સરકારી અધિકારીઓનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. જય ભારત, વંદે માતરમ. થેન્ક યુ. ભારત માતા કી. હવે બધા જ આપણા સ્થાને ઊભા થઈ અને સમૂહ રાષ્ટ્રગાનમાં એક સાથે જોડાશું અને ત્યાર પછી કાર્યક્રમને પૂર્ણ થયેલો જાહેર કરશું. સૌ સાવધાનની પોઝિશનમાં એક સાથ શરૂ કરેંગે રાષ્ટ્રગાન. ભારત माता की वंदे. इसी बीच हम सब तालियों के करताल ध्वनि से फिर से एक बार आज के मुख्य मेहमान आचार्य श्री देवव्रत जी का हार्दिक अभिवादन करते हैं. हमारा मन चाहे तब तक करताल ध्वनि से उसका अभिवादन करते रहेंगे. अपनी खुद हृदय की इच्छा के साथ वो जो सफल खेती किया है उसके बीच में आएंगे और ग्रुप फोटो के जैसे सबको रूबरू मिलेंगे. ये हमारा सौभाग्य है, ये गुजरात का सौभाग्य है कि एक अच्छे राज्यपाल जी हमको प्राप्त हुए हैं जो अपने परिवार के साथ अपने गांव में जो प्राकृतिक खेती करते हैं. हेलो हेलो हेलो. तो आप से मिलके मेरे ગામડું હોય કે શહેર, જો આપણી સંસ્કૃતિને જીવતી રાખીશું તો જ પરિવારની ગાથાઓ